تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ اللہ آسمانوں پر بلاتا، آسمانوں پر کیسے جائیں گے اور آسمانوں پر کیا ہوگا؟ آج تک ہم نے آسمانوں کو دیکھا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، میرے مصطفیٰ آؤ آسمانوں پر آؤ۔ ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے، ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آسمان کتنے؟ 7۔ تو نبی بھی کتنے انتظار کر رہے ہوں گے؟ 7۔ انگلی پر گنتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولو پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچے، بہت ہی خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے، سیدنا کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے، ساتویں آسمان پر پہنچے، سیدنا خلیل اللہ بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ بولو سبحان اللہ۔ اتنے آسمانوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پار کیا۔ 7۔ اب آگے جنت، بولو آگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، پہلی جنت، دوسری جنت جنت النعیم، تیسری جنت جنت عدن، چوتھی جنت جنت خلد، پانچویں جنت جنت سلام، چھٹی جنت جنت مقامہ، ساتویں جنت جنت ماوا، اور ہمارے نبی آخری جنت میں پہنچ گئے، بولو جنت الفردوس۔ سب سبحان اللہ ساتھ میں بولیں گے سبحان اللہ۔ اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں، ہم کو بھی 8ویں جنت میں جانا، اور ہمارے نبی بھی معراج میں کون سی جنت پر پہنچے؟ یعنی بولو نا کون سی جنت پر پہنچے؟ معلوم نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے کہاں گئے؟ اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا 8ویں جنت کا نام، اور ہمارے نبی ابھی کون سی جنت میں پہنچے؟ جنت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الفردوس کو دیکھا، کہا اللہ بہت پیاری جنت ہے، اللہ اتنی بڑی جنت، اللہ یہ جنت آپ کس کو دیں گے؟ اللہ نے فوراً جواب دیا، میرے مصطفیٰ فکر نہ کرو، آپ کی امت کو عطا کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ ہم کو وہی چاہیے تھی نا جنت، اور اللہ بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا اللہ یہ جنت الفردوس، اللہ یہ بہت اونچی جنت ہے، اللہ اس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں، اللہ یہ جنت کن کو دینے والے؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تم سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، تمہاری امت سے بڑھ کر کوئی بہترین امت نہیں، جب جنت اعلیٰ ہے تو دوں گا بھی تو سب سے پہلے آپ کی امت کو عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جنت الفردوس کس کی؟ ہماری۔ بولو نا کس کی؟ ہماری ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری ہے، بولو سبحان اللہ۔ قرآن میں 16ویں پارے میں جاؤ، اللہ نے فرمایا جنت الفردوس تمہاری ہے۔ اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں گے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیوں، اچھے عمل کرنے والے، اللہ فرماتے تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، ہمیشہ رہیں گے نہ گھٹیں گے، بولو بولو نہ ہٹیں گے نہ ہٹائے جائیں گے، وما ہم منہا بمخرجین، نہ نکلیں گے نہ نکالے۔ بولو جنت الفردوس ہماری، ہاتھ اوپر کر کے بولو جنت الفردوس۔ ایک بات بتاؤ، یہ ہمارا دھرم پوری دنیا پہلی جنت کے سامنے بہت چھوٹی ہے، تو 8ویں جنت جنت الفردوس جب اللہ ہم کو دیں گے، پورا مجمع ساتھ میں بولنا ایک بار ہم جنت الفردوس میں جائیں گے، پھر باہر آئیں گے۔
छोड़ेंगे, हटेंगे, न हटाए निकलेंगे, न निकाले। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो किसकी जन्नत है? हमने दूसरों की जमीन पे कब्जा किया, उसको नहीं छोड़ते, ये तो हमारे। कितनों की जमीन पर कब्जा कर लिया। किसी ने अपने चचा की जमीन पर कब्जा किया, किसी ने बहन का विरासत नहीं किया, किसी ने किसका हक नहीं दिया। हमने दूसरों की जमीन नहीं छोड़ी, वो जन्नतुल फिरदौस लो। मैंने साथ में बोलो ना, किसकी है? सबको जाना है, बिल्कुल पक्की बात, जाना है जन्नत में। आवाज नहीं है, सबको जाना है जन्नत में। मुझे कारी मौलाना आकिल साहब, अभी तक मैंने शुरू नहीं किया मैं। हाँ, अभी तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ कहाँ तक मामला पहुँचता है। और आप तो मेरे को दूल्हे की तरह बना दिया आपको और मेरे को। ऐसा सहरा तो शादी में भी नहीं बनता था। पूरा मजमा साथ में बोले, भाई कौन कौन जन्नत में जाने वाला? हाथ ऊपर करके बोले जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। और सवाल है कि जन्नत में तो जाएंगे, जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, 8वीं जन्नत में जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। जन्नत में आराम ही आराम। अरे बोलो ना, जन्नत में सच बताना, जन्नत में कोई रोक धंधे का, बीवी का, बीवी का मना करते हैं। मतलब यहाँ टेंशन है बीवी का है? सीधी बात बोलो ना, है? यहाँ जितने उलमा बैठे हैं सबको पूछो, सबको बीवी का टेंशन है। अरे मौलाना आकिल साहब, एक मतलब एक ने मेरे को पूछा, मौलाना आप इतने लंबे लंबे बयान आकर तकरीरें करते हो, कभी आप अपनी बीवी के सामने तकरीर करते हो और वो सुनती है? मैंने कहा ये सब बात छोड़ दे, मैं सुनता हूँ। समझ गए आप लोग? नहीं समझे तो बाद में समझ लेना। तो जन्नत में बोलो आराम ही। आपको मालूम है, मैं एक मतलब एक जगह बयान करने के लिए पहुंचा, मौलाना आकिल साहब एक बहुत लंबा चौड़ा मजमा बैठा हुआ था। तो मैंने देखा कि जिस तरह आप लोग माशाल्लाह बैठे थे, इसी तरह सब बैठे थे। एक को मैंने देखा कुर्सी पर बैठा, एक को मैंने देखा कुर्सी पर बैठा हुआ। बस यही मेरे ख्याल से रात के ऐसे 11-12 बजे थे। और मैं देख रहा था, मैं जब बयान कर रहा था, तकरीर कर रहा था, या जो भी बात में कर रहा था, मैं उसको देखता था जो कुर्सी पर बैठा है। कभी वो खड़े हो जाता है, फिर कभी बैठ जाता है, कभी बैठता है तो बिल्कुल राइट में जाता है, कभी लेफ्ट में जाता है, कभी आगे आता है, कभी पीछे जाता है। मैंने उसकी तरफ देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपना बयान करूं, उसको देखूं तो मैं डिस्टर्ब होता जाऊं, इसलिए मैंने दूसरी तरफ देखना शुरू किया। लेकिन जब बयान खत्म होने का वक्त आया, मैंने कहा भाई इतना बड़ा मजमा, मैं किसी की मुलाकात तो नहीं कर सकता। वो जो कुर्सी पर बैठा ना, उसकी कमबख्त की मुलाकात करूंगा। तो इतना खुश हुआ, कहा ओ खाली साहब आप मेरी मुलाकात करेंगे? मैंने कहा जरूर तेरी मुलाकात करूंगा। वो फौरन दौड़ता दौड़ता आया। मैंने कहा मैं मुलाकात कोई शौक में नहीं कर रहा, ये पूछने का है कि तू बयान में कभी खड़ा, कभी बैठा, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। कारी साहब आपके बारे में ऐलान हुआ था कि आप 9 बजे बयान को आएंगे, आप 12 बजे बयान करने के लिए आए, कब तक पेशाब दबा के बैठूंगा? इतनी जोर की पेशाब लगी है, इसलिए मैं ऊपर नीचे हो रहा हूँ। तो मैंने कहा अल्लाह का बंदा पेशाब आई तो करके आ जा, परेशान तो नहीं करना चाहिए। चला जाता तो कुर्सी अकेला कुर्सी पर किनारे पर बैठा था, तो कुर्सी कोई भी ले लेगा। तो मुझे उस वक्त एक ख्याल आया कि पेशाब करना भी टेंशन। यानी साथ में बोलो, पूरा मजमा बोलो, पेशाब करना भी टेंशन, पाखाना भी टेंशन। इसीलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में टॉयलेट ही नहीं, जन्नत में किसी को पेशाब आएगा ही नहीं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबूलून व ला यतगव्वतून। हमारे आका बोलो ना, ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में किसी को पेशाब, सामने बोलिए, जन्नत में किसी को पेशाब, किसी को पाखाना। वो एक सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे, जन्नत में पेशाब नहीं, पाखाना नहीं, हमारे नबी ने फरमाया कि जन्नत में गंदगी नहीं। तो सहाबी कहने लगे बात बराबर है, लेकिन जन्नत में तो हम खाएंगे। अरे बोलो ना, खाएंगे और जन्नत में भर भर के पिएंगे, तो जाएगा कहाँ? जब जन्नत में पेशाब भी नहीं, पाखाना भी नहीं, तो हम तो भर भर के खाएंगे, भर भर के पिएंगे, तो जाएगा कहाँ? सब सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। मैंने एक मरतबा बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। शानदार और जानदार जवाब हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। क्या फरमाया? क़ाल
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से फरमाया कि अल्लाह आसमानों पर बुलाता, आसमानों पर कैसे जाएंगे और आसमानों पर क्या होगा? आज तक हमने आसमानों को देखा नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आई, मेरे मुस्तफ़ा आओ आसमानों पर आओ। हर आसमान पर एक नबी आपका इंतजार कर रहा है। हर आसमान पर एक नबी आपका इंतजार कर रहा है। आसमान कितने? सात। तो नबी भी कितने इंतजार कर रहे होंगे? सात। उंगली पर गिनते जाना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर पहुंचे, बहुत ही खूबसूरत नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी चौथे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी पांचवें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी छठे आसमान पर पहुंचे, सैयदना कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। और हमारे नबी आखिरी आसमान पर पहुंचे, सातवें आसमान पर पहुंचे, सैयदना खलीलुल्लाह बोलो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। इतने आसमानों को हमारे नबी साहब ने पार किया। सात। अब आगे जन्नत, बोलो आगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। पहली जन्नत, दूसरी जन्नत जन्नतुन नईम, तीसरी जन्नत जन्नत आदन, चौथी जन्नत जन्नत खुल्द, पांचवी जन्नत जन्नत सलाम, छठी जन्नत जन्नत मुकामा, सातवीं जन्नत जन्नत मावा। और हमारे नबी आखिरी जन्नत में पहुंच गए। बोलो जन्नतुल फिरदौस। सब सुभान अल्लाह साथ में बोलेंगे सुभान अल्लाह। अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ। हमको भी आठवीं जन्नत में जाना और हमारे नबी भी मेराज में कौन सी जन्नत पर पहुंचे? नहीं बोलो ना, कौन सी जन्नत पर पहुंचे? मालूम नहीं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से कहाँ गए। अल्लाह ने फरमाया इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इद यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। पूरा मजमा साथ में बोलेगा आठवीं जन्नत का नाम। और हमारे नबी अभी कौन सी जन्नत में पहुंचे? जन्नतुल। हमारे नबी साहब ने जन्नतुल फिरदौस को देखा, अल्लाह बहुत प्यारी जन्नत है, अल्लाह इतनी बड़ी जन्नत, अल्लाह अल्लाह ये जन्नत आप किसको देंगे? अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, मेरे मुस्तफ़ा फिक्र न करो, आपकी उम्मत को अता करने वाला। सुभान अल्लाह। हमको वही चाहिए थी ना जन्नतुल। और अल्लाह भी कह रहे हैं, हमारे नबी साहब ने दूसरी मर्तबा पूछा, अल्लाह ये जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह ये बहुत ऊंची जन्नत है, अल्लाह इससे बढ़ के कोई जन्नत नहीं, अल्लाह ये जन्नत किनको देने वाले? अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा तुमसे बढ़कर कोई नबी नहीं, तुम्हारी उम्मत से बढ़कर कोई बेहतरीन उम्मत नहीं। जब जन्नत आला है तो दूंगा भी तो सबसे पहले आपकी उम्मत को अता करूंगा। सुभान अल्लाह। तो जन्नतुल फिरदौस किसकी? हमारी। बोलो ना किसकी? हमारी है। और ये लिखा हुआ है कि हमारी है। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान में 16वें पारे में जाओ, अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस तुम्हारी है। अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ेंगे, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे कलमा पढ़ने वाले बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते, मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियों, अच्छे अमल करने वाले, अल्लाह फरमाते तुम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा, हमेशा रहेंगे ना घटेंगे। बोलो बोलो ना हटेंगे ना हटाए जाएंगे। वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, न निकलेंगे न निकाले। बोलो जन्नतुल फिरदौस हमारी। हाथ ऊपर करके बोलो जन्नतुल फिरदौस। एक बात बताओ, ये हमारा धर्म पूरी दुनिया पहली जन्नत के सामने बहुत छोटी है, तो आठवीं जन्नत जन्नतुल फिरदौस जब अल्लाह हमको देंगे
फिर बाहर आएंगे, छोड़ेंगे, हटेंगे, न हटाए निकलेंगे, न निकाले। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो किसकी जन्नत है? हमने दूसरों की जमीन पे कब्जा किया, उसको नहीं छोड़ते, ये तो हमारे। कितनों की जमीन पर कब्जा कर लिया। किसी ने अपने चचा की जमीन पर कब्जा किया, किसी ने बहन का विरासत नहीं किया, किसी ने किसका हक नहीं दिया। हमने दूसरों की जमीन नहीं छोड़ी, वो जन्नतुल फिरदौस लो। मैंने साथ में बोलो ना, किसकी है? सबको जाना है, बिल्कुल पक्की बात, जाना है जन्नत में। आवाज नहीं है, सबको जाना है जन्नत में। मुझे कारी मौलाना आकिल साहब, अभी तक मैंने शुरू नहीं किया मैं। हाँ, अभी तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ कहाँ तक मामला पहुँचता है। और आप तो मेरे को दूल्हे की तरह बना दिया आपको और मेरे को। ऐसा सहरा तो शादी में भी नहीं बनता था। पूरा मजमा साथ में बोले, भाई कौन कौन जन्नत में जाने वाला? हाथ ऊपर करके बोले जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मेरा और सवाल है कि जन्नत में तो जाएंगे, जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, 8वीं जन्नत में जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। जन्नत में आराम ही आराम। अरे बोलो ना, जन्नत में सच बता ना, जन्नत में कोई रोक धंधे का, बीवी का, बीवी का मना करते हैं। मतलब यहाँ टेंशन है बीवी का है? सीधी बात बोलो ना, है? यहाँ जितने उलमा बैठे हैं सबको पूछो, सबको बीवी का टेंशन है। अरे मौलाना आकिल साहब, एक मतलब एक ने मेरे को पूछा कि मौलाना आप इतने लंबे लंबे बयान आकर तकरीरें करते हो, कभी आप अपनी बीवी के सामने तकरीर करते हो और वो सुनती है? मैंने कहा ये सब बात छोड़ दे, मैं सुनता हूँ। समझ गए आप लोग? नहीं समझे तो बाद में समझ लेना। तो जन्नत में बोलो आराम ही। आपको मालूम है, मैं एक मतलब एक जगह बयान करने के लिए पहुंचा, मौलाना आकिल साहब एक बहुत लंबा चौड़ा मजमा बैठा हुआ था। तो मैंने देखा कि जिस तरह आप लोग माशाल्लाह बैठे थे, इसी तरह सब बैठे थे। एक को मैंने देखा कुर्सी पर बैठा, एक को मैंने देखा कुर्सी पर बैठा हुआ। बस यही मेरे ख्याल से रात के ऐसे 11-12 बजे थे और मैं देख रहा था, मैं जब बयान कर रहा था, तकरीर कर रहा था या जो भी बात में कर रहा था, मैं उसको देखता था जो कुर्सी पर बैठा है। कभी वो खड़े हो जाता है, फिर कभी बैठ जाता है, कभी बैठता है तो बिल्कुल राइट में जाता है, कभी लेफ्ट में जाता है, कभी आगे आता है, कभी पीछे जाता है। मैंने उसकी तरफ देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपना बयान करूं, उसको देखूं तो मैं डिस्टर्ब होता जाऊं, इसलिए मैंने दूसरी तरफ देखना शुरू किया। लेकिन जब बयान खत्म होने का वक्त आया, मैंने कहा भाई इतना बड़ा मजमा, मैं किसी की मुलाकात तो नहीं कर सकता। वो जो कुर्सी पर बैठा ना, उसकी कमबख्त की मुलाकात करूंगा। तो इतना खुश हुआ, कहा ओ खाली साहब आप मेरी मुलाकात करेंगे? मैंने कहा जरूर तेरी मुलाकात करूंगा। वो फौरन दौड़ता दौड़ता आया। मैंने कहा मैं मुलाकात कोई शौक में नहीं कर रहा, ये पूछने का है कि तू बयान में कभी खड़ा, कभी बैठा, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। कारी साहब आपके बारे में ऐलान हुआ था कि आप 9 बजे बयान को आएंगे, आप 12 बजे बयान करने के लिए आए, कब तक पेशाब दबा के बैठूंगा? इतनी जोर की पेशाब लगी है, इसलिए मैं ऊपर नीचे हो रहा हूँ। तो मैंने कहा अल्लाह का बंदा पेशाब आई तो करके आ जा, परेशान तो नहीं करना चाहिए। चला जाता तो कुर्सी, मैं अकेला कुर्सी पर किनारे पर बैठा था, तो कुर्सी कोई भी ले लेगा। तो मुझे उस वक्त एक ख्याल आया कि पेशाब करना भी टेंशन, यानी साथ में बोलो, पूरा मजमा बोलो, पेशाब करना भी टेंशन, पाखाना भी टेंशन। इसीलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में टॉयलेट ही नहीं, जन्नत में किसी को पेशाब आएगा ही नहीं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबूलून व ला यतगव्वतून। हमारे आका बोलो ना, ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में किसी को पेशाब, साथ में बोलिए, जन्नत में किसी को पेशाब, किसी को पाखाना। वो एक सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे, जन्नत में पेशाब नहीं, पाखाना नहीं, हमारे नबी ने फरमाया कि जन्नत में गंदगी नहीं। तो सहाबी कहने लगे बात बराबर है, लेकिन जन्नत में तो हम खाएंगे। अरे बोलो ना, खाएंगे और जन्नत में भर भर के पिएंगे, तो जाएगा कहाँ? जब जन्नत में पेशाब भी नहीं, पाखाना भी नहीं, तो हम तो भर भर के खाएंगे, भर भर के पिएंगे, तो जाएगा कहाँ? सब सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। मैंने एक मरतबा बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। शानदार और जानदार जवाब हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मद रसूल
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشا